Good morning, everyone. I, Manvi Tiwari, second year BJMC student at Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the orientation series organized by DME Media School. Delhi Metropolitan Education, DME, is a premier educational institution affiliated with Guru Gobind Singh Indraprastha University and approved by Bar Council of India. Sessions like this with industry experts are important because they give you a glimpse of how things actually work beyond textbooks, help you understand the latest trends in media world, and most importantly, inspire you to dream bigger and shape your own journey. With this, I warmly welcome the new batch of 2025 to the DME Media School family and all the guests and dignitaries present here. We are honored to have with us Mr. Ashok Srivastav, senior journalist and primetime anchor at DD News, whose remarkable work in journalism has inspired many aspiring media professionals. I would request Professor Dr. Ravikant Swami Sir, Director DME, Professor Dr. Kiran Vij, Additional Director DME, and Dr. Parul Mehra, Head DME Media School, to felicitate our guest for today. Now, I would like to invite our director, sir, to kindly address the gathering and share his words of wisdom. So, how many of you remember the time when television was not there? Probably no one of you remembers that. But yes, go home and ask your parents the time when television was not there. I'm not talking about history. I'm talking about 1981. So television was not there. There was only one thing. What was that? Bada Parda, right? So if you want to watch anything moving, you need to go to a theater. Picture hall jana padta tha. So tell me, say 10,000 people were engaged in that work, jo movies banti thi. Around 10,000 or say 1 lakh people were involved. Okay. And then came Chota Parda. What happened? The number of people required for production, for script writing, for camera, it increased when we moved from Bada Parda to Chota Parda. Of course it increased, वरना शाहरुख खान को कोई रोल देने वाला नहीं था, इतनी तो उसकी हीरो ऐसी शक्ल भी नहीं है. मनोज वाजपेयी को भी रोल नहीं मिलने वाला था कोई, because these people do not look like heroes like Firoz Khan or Vinod Khanna. वैसे दिखते नहीं थे ये लोग. So when we moved from Bada Parda to Chota Parda, the scope of your area media increased. You understand this thing? It definitely increased, and so many new people got the roles, so many people were involved in script writing and all that. And then came the satellite channels. This was another phase. The amount of production increased multiple fold. And then came the time when OTT entered the scenario. Production कितने गुना बढ़ गया? हिसाब ही नहीं लगा सकते हम. So my dear students, you are lucky that you will be doing this BAJMC degree at a time when it is beginning of a new story. A new story is beginning with OTT. The amount of work, the quantity, the scope of work has increased so much that even we are unable to fathom that. All of you are lucky that you will be graduating, you will be getting your degree at a time when this media industry is evolving in a new manner, the scope is increasing multiple fold. I welcome you all. Parul ma'am, which batch is this, journalism? No, in number, is it the 13th batch?
did we start in 2013 or 12? It seems to be the 13th batch. I welcome the 13th batch of BAJMC to Delhi Metropolitan Education. I am sure with such a great studio, many Bollywood personalities visit this studio and all of them say one thing, अरे ऐसा studio तो Bollywood में भी नहीं है. Yes, we have seen studios out there and we can compare this with the best in the country. So with such infra, good teachers like Professor Parul, with great guests like Srivastav ji, I am sure you are going to have a learning with enjoyment. I generally tell Vishal ji that they come to me कि guest किसको बुलाना है, तो मैं बोलता हूँ कि guest उसको बुलाओ जिसके साथ हमारे बच्चे डीपी खिंचवाना पसंद करते हो. अशोक जी, yes, I welcome अशोक जी. अशोक जी is a personality जिनके साथ मैं भी सर 2-3 दिन डीपी लगा के रखूँगा. So with such guests, such infra, good teachers, Vishal ji, Garima, Dr. Parul, Chetna, I am sure you are going to have a great learning enjoyment resulting in a good placement. Welcome. Thank you so much, sir, for your encouraging words. And now, boys and girls, let's shift gears to newsroom. Stepping into our spotlight is a celebrated face of Indian journalism, senior journalist with DD News, Mr. Ashok Srivastav. Just as he engages millions of viewers with courage and confidence, we are honored to welcome him on stage to engage with our students today. बहुत शुक्रिया, बहुत आभार मेरे स्वागत के लिए. DME में शायद दूसरी बार आना हो रहा है, तीसरी बार. मैंने पहले ही यहाँ जब पहली बार आया था तो यहाँ के स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ कर चुका था, वो कह के रिपीट नहीं करूँगा. पारुल जी, विशाल जी, डिप्टी डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सब तो अभी नहीं है. मुझे जब जानकारी मिली कि नया बैच शुरू हुआ है और मेरे को कहा कि नए बैच के साथ एक इंटरेक्शन है, तो मैं ऐसे जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, मैं बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यंगस्टर हैं उनसे सीखने को मिलेगा और ये जानने को मिलेगा कि दरअसल वो क्या सोचकर इस मीडिया की लाइन में आया. मुझे इस लाइन में आया, मुझे मीडिया के प्रोफेशन में आए करीब 3 दशक हो गए, उससे थोड़े ज़्यादा 30 साल. आप में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे, ज़्यादातर लोग पैदा भी नहीं होंगे उस वक्त. तब मैं मीडिया में आया था और तब एक तस्वीर दूसरी थी, मीडिया की तस्वीर दूसरी थी, आज तस्वीर दूसरी है. तो आज जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जनरेशन है, जब वो मीडिया को एज ए प्रोफेशन चुनती है तो क्या सोचकर चुनती है, ये मेरे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बदलावों के साथ आपको चलना होता है. तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप में से 3 या 4 लोग, विशाल जी इनका माइक पहुंच जाएगा, वैसे माइक नहीं भी पहुंच जाएगा तब भी आवाज़ मिल जाएगी. मैं आप में से 3 या 4 लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रोफेशन को चुना, आपने मीडिया एजुकेशन को चुना, तो क्या सपना था, क्या सोचकर आपने चुना, क्या करना चाहते हैं आप? क्या आ रही है आवाज़? हाँ आ रही है. ओके, तो मेरा ये मतलब मकसद था और अभी भी है, इस पे काम हो रहा है कि एक आवाज़ बनना है, एक आवाज़ ऐसा बनना है जो ऑडियंस तक डायरेक्ट पहुँचे और ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक मैं उसको लेकर के जाऊँ. जो काम अभी हो भी रहा है और काम जो नहीं भी हो रहा है, जिसको ढक दिया जा रहा है, अंधकार में डाल दिया जा रहा है, उस चीज़ पे काम करना है. आप एक आवाज़ बनना चाहती हैं? हाँ जी. मतलब किसकी आवाज़ बनना चाहती हैं? ऑडियंस की, जनता की. तो मतलब उसके लिए आप क्या सोचती हैं, आपके लिए सही मीडियम क्या होगा? सही मीडियम अगर अभी देखा है तो एक जर्नलिस्ट का, मतलब रिपोर्टर का, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो करते हैं उसका. ओके. मैं आंचल नाम बताया ना, मैं आंचल आपकी बात पर आऊँगा, लेकिन पहला एक लेसन, आवाज़ नहीं, आवाज़ सर, आवाज़ बनना है आपने. आवाज़ ही बोला है, आवाज़, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि आवाज़ सुनाई दे. हाँ. ठीक है, तो आवाज़ बनने ये मैं जस्ट एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इसलिए बिकॉज ये मीडियम जो है
ये विजुअल मीडियम है या आप सुनते हैं, वहाँ पर क्लैरिटी, वहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप जिस लाइन में आ रही हैं या जो करना चाहती हैं, आप दुनिया से अबव ऊपर रहकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये दुनिया में हो रहा है, तो उसके लिए आपको दुनिया से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, अलग क्वालिटी। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन आपने कहा आप रिपोर्टिंग करना चाहती हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि किसी को भी जो पहला लेसन होता है रिपोर्टिंग होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो आपने, अच्छी बात है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग से चुना कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग से शुरुआत करना चाहती हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि आप जो समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, वो दिखाना चाहती हैं, उस पर मैं आऊँगा। और यहाँ से इधर इधर। हेलो सर, माय नेम इज़ रितिका। सर, मैंने इस फील्ड को ज्वाइन करने से पहले कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था। जब यूनिवर्सिटी में आई, जब कॉलेज मैंने एडमिशन की स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सोचा था कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि खाली रिपोर्टिंग करना ही एक जर्नलिस्ट का काम नहीं होता या एक रिपोर्टर का काम नहीं होता। उस चीज़ को समझना, उसके बारे में महसूस करना भी उस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो एज अ रिपोर्टर और एज अ एंकर हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे रिपोर्टर्स कहते बहुत कुछ है, हम सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं कि सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं, और कुछ रिपोर्टर्स हमें सच बताते भी हैं तो उनको दबा दी जाती है उनकी आवाज़ को, क्योंकि वो कुछ ही रिपोर्टर्स ऐसे बचे हैं जो आज के टाइम पे रियलिटी बताते हैं हमें। बाकी रिपोर्टर्स कुछ किसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टर्स वो होंगे जो रियलिटी को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो रिपोर्टर बनूँ जो रियलिटी को सपोर्ट करे, किसी पार्टी को या फिर किसी को प्रोटेक्ट ना करे। रियलिटी क्या होती है? सर, जो मैं देखूंगी मैं वही बताऊंगी, मैं किसी के कहने पे वो न्यूज़ को चेंज नहीं कर सकती। जो आप देखते हैं उसको भी बताने के तरीके। अब बहुत पुराना उदाहरण, आधा ग्लास पानी है तो आप उसको देखेंगे कैसे कि आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है? आधा ग्लास खाली और आधा भरा हुआ है? नहीं, आपको अगर बताना है कि ये ग्लास में कितना वाटर है तो आप ये नहीं कहेंगे आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा है। आपको वन लाइन में बताना है तो क्या बताएंगे? इसमें पानी आधा है। पानी आधा है, पानी आधा है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन हो जाता है कई बार कि आपका परसेप्शन क्या है रियलिटी। तो इतना आसान नहीं होता ये आपने जो कहा। और जैसे आपने कहा, मैं मानता हूँ इस वक्त मीडिया बिल्कुल दो धड़ों में बटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, आई टोटली एग्री। लेकिन ये कहना कि ज़्यादातर रिपोर्टर जो है गलत दिखाते हैं या सही नहीं दिखाते, ये ज़रूर है, पक्ष लेते हैं, और रिपोर्टर को पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है आपकी। रिपोर्टर का काम जो है सच्चाई के साथ खड़े रहना, और सच्चाई क्या जो उसको दिख रही है, बात आपकी सहमत हूँ। लेकिन ऐसा कहना कि ज़्यादातर रिपोर्टर ऐसा नहीं करे, सही नहीं है, क्योंकि आपका अपना परसेप्शन है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो आप जो देखते हैं वो दिखाते हैं, उसको आप फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन मीडिया में ऐसे कम है, सोशल मीडिया में ज़्यादा है जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट Yes, कर sir. देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि और ये अच्छी बात है, मुझे दो लोग अभी तक दो आवाज़ें सुनाई दी, दोनों ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग पर को समझना ही पड़ेगा, ग्राउंड पर रहकर चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। कोई और? हेलो सर, मेरा नाम एमरोज़ है एंड मुझे फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई वांट टू बिकम अ फोटो जर्नलिस्ट। ओके, फोटो जर्नलिस्ट आप बनना चाहते हैं, गुड। मैं इसीलिए डाइवर्सिटी देखना चाहता हूँ, या डाइवर्सिटी कितनी है कि यहाँ पर सारे लोग टेलीविज़न में जाना चाहते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो दरअसल फोटोग्राफी चाहते हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं। वो डाइवर्सिटी में समझने और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर, माय नेम इज़ ईशान बिसारिया और मेरा मकसद है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का। सो मैं इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं और स्टूडेंट से बात करूंगा, आपके सवाल आएंगे जब। लेकिन मैंने ये इसलिए जानना चाहा क्योंकि होता ये है कि आज की तारीख में अलग अलग मीडिया में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, और इन बहुत सारे स्ट्रीम्स में आप क्या चुनते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्राउंड रियलिटी के लिए रिपोर्टर बनना चाहते हैं, वरना कई बार बड़ी तकलीफ़ होती है और कई बार बड़ा ख़राब लगता है जब
जब मैं यंगस्टर्स के बीच जाता हूँ, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि एंकर बनने में कोई खराब बुराई नहीं है, एंकर बनने का सपना होना भी चाहिए। अल्टीमेटली जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है एक दिन एंकर बनता है, और उसको बनना भी चाहिए, क्योंकि एंकर किसी भी चैनल का फेस होता है, और किसी चैनल का फेस बनना अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है, और आपको वो करने में। लेकिन सीधा बहुत सारे लोग एंकर बनना चाहते हैं, तो तकलीफ होती है। मुझे अच्छा लगा आंचल ने और यहाँ से निहारिका, रितिका ने कहा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं आता हूँ कि देखिए मीडिया जो है अपने आप में, मैं यहाँ पर आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। मुझे करीब 30 साल से ज़्यादा हुआ मीडिया की लाइन में आए हुए। मैंने मीडिया की कोई पढ़ाई नहीं करी है, मैंने कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया है, क्योंकि जिस दौर में मैं मीडिया में आया उस दौर में एक जर्नलिस्ट अगर बनना है तो ये माना जाता था कि आप अच्छा लिखते हैं, आपकी न्यूज़ पर पकड़ है, इतना पर्याप्त है। अगर आप न्यूज़ पे अच्छी पकड़ रखते हैं और अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं तो आपके लिए अखबारों की दुनिया थी, उस समय अखबारों की दुनिया थी और कुछ था नहीं, तो आपके लिए आसान होता था एक पत्रकार बनना। डिग्री डिप्लोमा पूछा नहीं जाता था कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है कि नहीं है। मैं उसी दौर में आया, उस दौर में मैं जर्नलिस्ट बना। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग आए होंगे जिस साल मैं आया, उनमें से मेरे साथ के बहुत सारे लोग धीरे 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 आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए। आज वो मीडिया की लाइन में नहीं, आज वो कुछ और कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने अपने आप को परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए तैयार नहीं किया। जब आप अपने आप को चेंजेस के लिए तैयार नहीं करते तो आप पीछे छूट जाते हैं, या आप जो है कहीं के नहीं रहते। तो मैं आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूं ये कि आज आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, आपकी एजुकेशन शुरू हो रही है, आप यहाँ से सीखने के लिए आए हैं। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ, और जिस बात को पारुल जी भी मानती हैं और विशाल जी भी मानते हैं, और इसलिए आप लोगों का कोर्स भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो ये कि जो मीडिया है, जो मास मीडिया है, वो पढ़ने से ज़्यादा सीखने की चीज़ है। सिर्फ पढ़ करके, किताबें पढ़ करके, कोर्स को समझ करके कोई अच्छा जर्नलिस्ट या कोई अच्छा मीडिया का व्यक्ति नहीं बन सकता। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको इस मीडिया लाइन में आना है तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपना उदाहरण से बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन जब मैं आया तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें सीखी। लेकिन आपकी नींव यहाँ पर पड़ रही है, आप अगर यहाँ पर आए हैं तो आपको आपकी नींव यहाँ तैयार करने का काम हो रहा है। उसको कैसे तैयार आपकी नींव की जाती है, उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट तरीके से उसको सीखिए। लेकिन आज जो आप सीख रहे हैं, मैं फिर अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हो सकता है कि 10 साल बाद या 7 साल बाद मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन हो सकता है आज जो मैं कह रहा हूँ वो आपको 10 साल इंतज़ार ना करना पड़े, आपकी ज़िंदगी में 5 साल बाद वो लम्हा आ जाए। आपकी नींव यहाँ तैयार हो रही है, लेकिन आपको मीडिया में बदलावों के लिए तैयार होना चाहिए। क्यों? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से आपसे इस बात कर रहा हूँ। मैं जब इस लाइन में आया, मीडिया में आया, तो उस वक्त सिर्फ अखबारों की दुनिया थी, टेलीविज़न न्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन पर न्यूज़ होती थी, और वो भी जो न्यूज़ पढ़ते थे वो न्यूज़ रीडर होते थे, वो जर्नलिस्ट नहीं होते थे। सिर्फ दूरदर्शन पर न्यूज़ आती थी और कहीं न्यूज़ नहीं आती थी। दूरदर्शन, BBC एक सोर्स था जिस पर न्यूज़ आती थी, रेडियो पर न्यूज़ आती थी, लेकिन इसके अलावा कोई न्यूज़ की जगह नहीं थी। तो मैं जब आया तो उस वक्त अखबार की ही दुनिया थी, और मैं बहुत छोटा सा सपना लेकर आया था। आज आपके सपने होंगे, अलग अलग सपने होंगे, बहुत सारे सपने होंगे। मैं जब मीडिया की लाइन में आया तो मेरा एक छोटा सा सपना था। उस वक्त तो लाइफ बड़ी सिंपल होती थी, आज की जैसी लाइफ ज़िंदगी नहीं होती थी। तो आप यकीन करेंगे, उस वक्त जो है नवभारत टाइम्स देश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार होता था। आज भी वो नवभारत टाइम्स है, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन नवभारत टाइम्स देश का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार होता था। वहाँ जो सब एडिटर की जॉब होती थी, सब एडिटर को 4,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। तो मेरा छोटा सा सपना था कि मुझे नवभारत टाइम्स में नौकरी मिल जाएगी, मैं एक बजाज का स्कूटर खरीद लूँगा और मेरी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। इससे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। लेकिन ज़िंदगी आपको चैलेंजेस देती है। मैं आया अखबार की दुनिया के लिए था, मैं आया उस तैयारी के साथ था कि मैं अखबारों के लिए काम करूँगा और उसी में मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन ज़िंदगी जैसे बदलती है,
तो मुझे 30 साल में मैंने मीडिया के अंदर 3 बड़े या यूं कह सकते हैं 4 बड़े बदलाव देख लिए। और यह सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे गुरु मिले, मुझे ऐसे लोग मिले, मुझे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे उन बदलावों के लिए तैयार किया, इसलिए मैं सस्टेन कर सका। मतलब मेरे जैसा आदमी जिसने टेलीविज़न एंकरिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसने टेलीविज़न की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिसने अखबार की ट्रेनिंग नहीं ली है, आज 30 साल से मैं इस लाइन में हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे गुरु मिले, मुझे अच्छे मेरे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि भाई इसके लिए आप तैयारी कीजिए क्योंकि आने वाला दौर इसका है। उसी तरह से आज मैं आपको, तो मैंने कहा ना मेरे सामने क्या हुआ, अखबार में आया था, सडनली जो है टेलीविज़न आया हिंदुस्तान में, टीवी न्यूज़ आई, न्यूज़ चैनल आए और इतना बड़ा बदलाव हुआ कि लगा कि अखबारों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये अलग बात है, अखबारों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई लेकिन बहुत सीमित हो गई है। आज तो अखबार बहुत कम पढ़े जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं डिजिटली पढ़े जाते हैं। आज पेपर बहुत कम लोगों के घर में आता है। तो टेलीविज़न आया तो मैं टेलीविज़न में गया और मेरे जो न्यूज़पेपर के जो मेरे एडिटर थे, सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने मुझे कहा कि अशोक तुम टेलीविज़न के लिए बने हो। मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि मैं अपने आप की तैयारी करके नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे बोला अशोक तुम टेलीविज़न के लिए बने हो और तुमको टीवी की दुनिया में जाना चाहिए। मेरे अखबार के संपादक ने मुझे कहा और उसके बाद उन्होंने मुझे टेलीविज़न में जाने दिया और अल्टीमेटली मैंने टेलीविज़न सीखा। और जब मैंने टेलीविज़न सीखा, जब मैं टेलीविज़न के अंदर जो है जम गया था, तो सडनली मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट आया। आज वो टाइम्स नाउ में एंकर है, प्रणेश नाम उसका है, अगर आप कभी देखते होंगे टाइम्स नाउ में बहुत बढ़िया एंकर है। वो मेरा स्टूडेंट था प्रणेश। प्रणेश ने एक दिन मुझे आकर बोला कि सर आप डिजिटल मीडिया पे क्यों नहीं है। ये बात है 2011 या 2012 की। तो प्रणेश मेरे स्टूडेंट ने आके बोला कि सर आप डिजिटल मीडिया में क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता। आप यकीन करेंगे मेरे स्टूडेंट ने मेरा ट्विटर हैंडल बनाया जिसको अब एक्स बोलते हैं, और उसने बोला कि सर आने वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मुझे मेरे सीनियर्स ने भी सिखाया, मुझे मेरे जूनियर्स ने भी सिखाया, और इसीलिए आज मैं यहां सरवाइव कर पाया क्योंकि मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे सीखना नहीं है, मुझे कोई नई चीज सीखनी नहीं है। अगर मैं सोचता नहीं मैं तो अखबार में ही रहूंगा, मुझे टेलीविजन में नहीं जाना, मैं उसके लिए तैयार नहीं करता, तो फिर मैं शायद पीछे रह जाता। या अगर मैं अपने स्टूडेंट को कहता कि अरे ये मुझे सिखाएगा डिजिटल मीडिया, ये तो अब इसको मैंने सिखाया टेलीविजन पे, ये मुझे अब बता रहा है डिजिटल मीडिया पे आओ, तो अगर मैं इस एटीट्यूड से आता तो शायद आज मैं डिजिटल मीडिया के दौर में सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन आज मेरा ट्विटर हैंडल भी अच्छा खासा है, मैं इंस्टा पर भी अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा हूँ, और साथ साथ मैं जो है टेलीविज़न में हूँ ही, अखबारों के लिए मैं आज भी लिखता हूँ। तो मेरे लिए सारी विधाएं जो हैं वो आज भी मेरे लिए बनी हुई हैं। लेकिन इस बात को समझिए, मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज आपकी नींव तैयार हो रही है यहाँ, लेकिन ज़िंदगी में आने वाले बदलावों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि आने वाले 5 साल में 7 साल में मीडिया किस शक्ल में होगा आप सोच कर आए होंगे। टेलीविज़न आप सोच कर आए होंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सोच कर आए होंगे, एंकरिंग आप सोच कर आएंगे, रेडियो जॉकी आप सोच कर आएंगे, फोटोग्राफर। लेकिन अगले 5 से 7 साल में सिनेरियो और मार्केट बहुत तेज़ी से बदल सकता है। क्या उन बदलावों को अडॉप्ट करने के लिए आप तैयार हैं? ये आपकी तैयारी है, और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, किसी क्लास में नहीं सिखाया जाएगा। ये आपको जिंदगी सिखाती है, और साथ साथ जिंदगी में आपका एटीट्यूड सिखाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मेरे को कौन सिखाएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूं। ये एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई सिखा नहीं सकता। जिस दिन ये एटीट्यूड आपके मन में आ गया उस दिन आप खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। हमेशा एक सीखने की ललक होनी चाहिए। मैंने टेलीविज़न सीखा, मैंने अभी आपको बोला ना आवाज़, जब मैं प्रिंट से टेलीविज़न में गया था, नलिनी सिंह उस वक्त बहुत बड़ी टेलीविज़न की एंकर थी, मैं नलिनी सिंह जी के पास गया, तो नलिनी सिंह जी जब उन्होंने मुझे इसलिए अपने यहाँ बुलाया और मुझे बुलाकर जॉब दी क्योंकि मेरी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी थी। मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं अखबारों में लिखता था, उनको मेरी स्क्रिप्टिंग पसंद थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे टेलीविज़न में बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा वॉइस ओवर करो। मैं यकीन से आपको बता रहा हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी आवाज़ भी कोई क्वालिटी होगी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आवाज़ जो है टेलीविज़न के लायक होगी। तो मुझे बड़े हैरानी हुई, मैंने उनसे कहा कि मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे। बोला नहीं अशोक तुम बोलो। उन्होंने मुझे कहा स्क्रिप्ट पढ़ो।
और मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू करी। स्क्रिप्ट पढ़ने जब मैंने पढ़ी तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, उन्होंने बोला ये क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा क्या बोले? बोले अरे ये फिर नहीं होता, फिर होता है, फिर। मैं फिर बोलता था कि फिर जो है ये किया। उन्होंने कहा फिर नहीं होता, फिर होता है। फूल नहीं होता, फूल होता है। उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार फूल, मैं तो फूल ही बोल रहा हूँ, फूल ही होता है। बोले नहीं वो अंग्रेजी का फूल होता है, नहीं तो फूल होता है। तो उन्होंने मुझे मेरा उच्चारण सही करवाया। मैं आवाज नहीं बोलता था, मैं आवाज ही बोलता था। मैं जीटीवी नहीं बोलता था, मैं जीटीवी नहीं बोलता था, मैं जीटीवी बोलता था। मैं गाजियाबाद नहीं बोलता था, मैं गाजियाबाद बोलता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई अपना तलफ्फुज ठीक करो, अपना उच्चारण ठीक करो। फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने बोला अशोक तुम एंकरिंग करो। मुझे नहीं पता था कि मैं एंकर बनूंगा, कि एंकर मैं कैसा एंकर बनूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं तुम कर सकते हो। जब मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया और जब मेरे वॉइस ओवर चलने लगा, और ये एक बात बताऊं, आवाज आपकी पहचान होती है, बहुत बड़ी पहचान होती है। और आवाज में आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी आवाज रेडियो या टेलीविजन के लायक नहीं? किसी को लगता है ऐसा है? किसी को तो हाथ खड़े करो अगर किसी को ये गलत फहमी है तो। किसी को ऐसा लगता है? सबको लगता है हमारी आवाज ठीक है, हम आवाज, बिल्कुल आप सबकी आवाज ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे लगता था मेरी आवाज रेडियो टेलीविजन के लायक नहीं है, लेकिन आवाज जो है आपकी यूनिक है। और आपकी आवाज जो यूनिक है, और आज की दुनिया की, आज जो टेलीविजन रेडियो या जो आज डिजिटल दुनिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी आवाज जैसी है दुनिया उसको वैसे एक्सेप्ट करेगी। मैं हमेशा लोगों को उदाहरण देता हूं कि अरे हमारे यहाँ तो पूजा ढिंचैक भी जो है वो सिंगर बन गई, तो इसका मतलब कोई भी सिंगर बन सकता है। हमारे यहाँ तो एक जमाना था कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से नीचे बात नहीं होती थी। मतलब फिल्मों में गवाना है तो मतलब लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी बहुत आते थे, तो महेंद्र कपूर आ जाते थे, इस तरह के लोग आ जाते थे। लेकिन इसके नीचे कोई आता नहीं था। आज तो हिमेश रेशमिया भी गा रहे हैं, आज तो वो भी गा रहे हैं, उनकी आवाज़ भी एक्सेप्ट है। एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन साहब को, जिनकी आवाज की आज दीवानगी है और जिनकी आवाज उनकी सबसे बड़ी ताकत है, एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन साहब को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत भारी है, ऑल इंडिया रेडियो पे ये आवाज चलेगी नहीं। तो अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट कर दिया था उनकी आवाज के लिए, लेकिन आज उनकी आवाज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में गए तो अमिताभ बच्चन को उनकी हाइट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं ये तो बड़ी हाइट है, इतनी लंबी हाइट का कोई हीरो थोड़ी होता है। अभी सर हीरो की बात कर रहे थे ना, तो अमिताभ बच्चन को उनकी हाइट के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। मुझे याद है एक फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, जब उनकी शुरुआत की फिल्म थी, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, क्योंकि मैं उनका किस्सा इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि वो मेरे कॉलेज के हैं, एंड आई एम प्राउड कि मतलब वो दिल्ली के करोनिमल कॉलेज जिससे मैंने पास आउट हुआ, मेरे कॉलेज के हैं, तो वो कई बार किस्से सुनाते हैं जब भी कॉलेज में आते थे। तो वो बताते थे जब उनकी पहली फिल्म थी, तो उनकी पहली फिल्म में क्या हुआ कि उनका एक छोटा सा रोल था फिल्म के अंदर, तो वो जो रोल था वो काट दिया गया। अल्टीमेटली उन्होंने किया, बहुत छोटा रह गया। तो जब वो गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, कहा कि सर मेरा रोल तो उसमें, तो बोले अरे तुम्हारा तो है, तुम्हारा अच्छा खासा रोल है। तो बोले कैसे? बोले उसमें देखा ना वो हीरो चल रहा था, उसके पीछे टांगे जा रही थी, वो टांगे तुम्हारी तो थी। तो आप सोचिए कि उस जिसको हम सदी का सबसे बड़ा महानायक कहते हैं, उनको इस दौर से गुजरना पड़ा क्योंकि उनकी हाइट को लेकर के ये कहा गया कि उनकी हाइट जो है वो दरअसल ठीक नहीं है, फिल्मों के लिए नहीं है। तो मैं आपसे यहां ये कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी शक्ल सूरत, आपका जो भी है, आप जैसे दिखते हैं, वो सब टेलीविजन रेडियो सबके अनुकूल है। लेकिन आपको सीखना क्या है? आपकी आवाज को आपको थ्रो कैसे करना है, आपकी आवाज को आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है, वॉइस प्रोजेक्शन आपको सीखना है। वो आपके लिए सीखने की चीज है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट कह सकते हैं, कैसे आप अपनी बात कह सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे एक सवाल मैं बार बार स्टूडेंट से पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए पहली क्वालिटी क्या है, फर्स्ट क्वालिटी? ये सवाल मेरा आपसे है। कॉन्फिडेंस, ओके, और लैंग्वेज पे पकड़, और कम्युनिकेशन स्किल, और हाँ, अभी आपने कम्युनिकेशन स्किल का अभी आप नॉलेज कह रही हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल किसने बोला था? आपने। और नॉलेज किसने बोला? अच्छा, क्या नाम आपका?
आपने नॉलेज बोला, आपने मैं नॉलेज किसने बोला? अच्छा आपने बोला, सॉरी मैं बीच में देख रहा, तो आपने नॉलेज बोला सर। क्या? हाँ ऑनेस्टी। सॉरी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, अच्छा ऑनेस्टी, ओके, क्लैरिटी, ओके, ओके। और तो अगर इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए आप कैसे एबल बनेंगे? ओके, और कोई कहना चाहेगा? करेज नहीं, करेज एम्पैथी दोनों। और कोई कहना चाहेगा? गेस कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ इसके और आप में से कई लोग बहुत कुछ सही कह रहे हैं, कई लोग जो हैं कह रहे हैं लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बताइए, कोई कहेगा या मैं आंसर पर आऊं? बोलो। सर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ओके ठीक है। सर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, किसने बोला प्रोनाउंसिएशन? अच्छा आपने बोला प्रोनाउंसिएशन, ओके। गुड लिसनर, किसने कहा? तो आप गुड लिसनर, तो फिर आप श्रोता बन जाओगे, फिर आप कहोगे कैसे? ठीक बात, ठीक है, गुड लिसनर, ओके। चलो अब मैं जवाब बताऊं। मैंने आपसे पहली क्वालिटी पूछी थी, आप जो सब कह रहे हैं वो सब क्वालिटी चाहिए। हालांकि करेज, पता नहीं करेज मतलब करेज होनी चाहिए, एक जर्नलिस्ट में करेज तो होनी चाहिए। कश्मीर में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और आप पहले क्या, नहीं कश्मीर में तो वहाँ पे तो पहलगाम आतंकी हमला हो गया, हम क्यों जाएं कश्मीर? हैं, आपको बाढ़ में भेज दिया, उत्तराखंड जा रहे हो, वहाँ तो पहाड़ गिर जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी में जब पहली बार कश्मीर में रिपोर्टिंग करने गया था, 92 या 93 था। हजरत बल आपने सुना होगा, कश्मीर में एक बहुत उनकी पवित्र मस्जिद है, वहाँ पर मोहम्मद साहब का बाल था, वो तो इसलिए बड़ा उसको, तो 92-93 में हजरत बल में टेररिस्ट घुसे थे। तो जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया नहीं कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर मुझे जाने नहीं देती। वो कहती नहीं कश्मीर, क्योंकि उस वक्त कश्मीर की हालत बहुत ख़राब थी। आज तो कश्मीर बहुत लोग घूमने जाते हैं, उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। तो करेज ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं पहला आंसर बताता हूँ। आपका नाम क्या है? वृंदा। वृंदा के लिए एक बार जोर की तालियां बजाइए। वृंदा आपने क्या कहा था? नॉलेज। देखिए, आपको एंकर बनना हो, आपको रिपोर्टर बनना हो, आपको मीडिया में आना हो, पहली चीज आपका जो पहला क्वालिटी है वो नॉलेज है। नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब वृंदा एक्सप्लेन करो, क्या होता है नॉलेज का मतलब? अब आपने बताया, तालियां खाई हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको बताना भी पड़ेगा नॉलेज का। नॉलेज से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके देश भर में या फिर देश के बाहर भी क्या क्या हो रहा है। आपको अपनी कंट्री की हिस्ट्री या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें या सोशल चीज़ भी है, वो क्या हो रही है उसके बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए कि जनरल जो के लिए एक बार और जोर की ताली बजाइए। बहुत क्लैरिटी हुआ आप में, बहुत क्लैरिटी, और अच्छी बात है। देखिए, आप सब ने जो बात कही ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के आंसर गलत थे, आप लोग अपने अपने हिसाब से सही कह रहे हो। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि पहली क्वालिटी, तो पहली क्वालिटी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? वो बड़ी जरूरी है। और वो नॉलेज क्यों जरूरी है? जैसे वृंदा ने बताया कि आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्री कल कहां थे, चाइना में कहां थे? एससीओ में थे, ठीक है, एससीओ में थे वो। तो ये मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए। कल राहुल गांधी कहां थे? हाँ, कल राहुल गांधी कहां थे? नहीं पता? मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। भारत में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनका भी मालूम होना चाहिए। कल वो गांधी मैदान में थे, पटना के गांधी मैदान में थे, उनकी जो वोटर अधिकार यात्रा उसका समापन था, उसकी रैली थी। जरांगे कौन है? जरांगे का नाम सुना है? मराठा आरक्षण क्या है जानते हो आप? मुंबई में क्या हो रहा है? हाँ, लैंग्वेज के ऊपर तो जो आप खबर बता रहे हो वो 2 महीने पुरानी है। ठीक है, आप जाके गूगल करिएगा, जानिएगा।
मैंने ये सिर्फ इसलिए आपसे पूछा जब वृंदा ने कहा कि आपको अपने आसपास की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस जर्नलिज्म की लाइन में आना चाहते हैं, मीडिया के लिए बनना। और मैं ये बता रहा हूँ, ये उतना ही इंपॉर्टेंट जो है किसी जो आदमी फोटोग्राफर बनना चाहता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी मालूम होना चाहिए कि जरांगे कौन है, मुंबई में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं और पुतिन क्या कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये आपकी जानकारी कहाँ से जुटाओगे, कहाँ से मिलेगी ये जानकारी? हाँ, पढ़ के। कहाँ से पढ़ोगे? अच्छा, अब आप बताओ, वृंदा न्यूज़पेपर पढ़ती हो? नहीं। हाँ, डिजिटली पढ़ती हो। ओके, कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर डिजिटली या ऑन पेपर जो है प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं? कितने लोग हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो, कितने लोग पढ़ते हैं? 1 2 3, बाकी सब 4 5। अब बात बताओ यार, 5 बाकी लोग अपनी इंफॉर्मेशन की जो जरूरत होती है वो कैसे पूरी करते हैं बताइए? अरे इंटरनेट पे आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, कि इंटरनेट पे आप जाकर ओटीटी देखते हो? हाँ, क्या मैंने पूछा कि कितने लोग न्यूज़ को देखिए। अगर आपको एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, जो मुझे किसी ने बताया नहीं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी जाने में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ भी बहुत विशाल क्षेत्र है। लेकिन अगर आप न्यूज़ की फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? और आपको नॉलेज होने का मतलब है कि आपको आसपास क्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और साथ साथ वो आपको कम से कम आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ नॉलेज है। आपने एक बात कही थी, आपका नाम क्या है? उर्वी। उर्वी, आपने कहा, आपने क्या बोला था, क्या इंपॉर्टेंट है? How you convey your information to Okay. the audience. कन्वे योर इंफॉर्मेशन टू ऑडियंस। ये Yes. कैसे कन्वे करेंगे आप? Oh, sir, basically there should be a way, like there should be a way that people are able to understand me. I आपके might be कन्वे करने का मीडियम क्या है? language. लैंग्वेज। लैंग्वेज, कितने लोगों ने लैंग्वेज के लिए बोला था? किसी ने बोला था हाँ लैंग्वेज के लिए। देखिए, पहली जो चीज़ है, मैंने इसलिए कहा कि पहली नॉलेज आपको होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि आपके पास अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी भाषा का मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Sir, basically, if I am able to speak English, then I should have the command on my वो language. कमांड कैसे आएगी? Practice करके प्रैक्टिस कैसे होगी? daily. हाँ, बोलो बोलो। देखो, एक बात समझो, मैंने कहा आप सब लोग ना सोच सही रहे हो, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वो नॉलेज होती है, जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, और एक्सप्रेस करने का जो मीडियम है वो लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज आपकी कैसे बेहतर होती है वो आपकी वोकैबुलरी से, आपके शब्द भंडार से। क्या आपके पास शब्द भंडार, आपके पास उतने शब्द हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ? वो शब्द आपके पास होने चाहिए। एक डेड बॉडी है, अगर उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हो तो आप उसको कई शब्दों से उसको कह सकते हो। आप उसको लाश भी कह सकते हो, आप उसको शव भी कह सकते हो, आप उसको पार्थिव देह भी कह सकते हो, ठीक है ना? कुछ भी कह सकते हो। लेकिन कहाँ ये शब्द कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको तो आपको इसके लिए शब्द चाहिए ना। तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपके पास लैंग्वेज होती है। तो ये चीज़ें, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको यहाँ पर कोई सिखाएगा नहीं। आपको ज़रूर विशाल जी कह देंगे अखबार पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद फिर जब गड़बड़ होगी तो फिर आप कहोगे कि हमको तो पढ़ाया नहीं गया। लेकिन ये चीज़ें आपको खुद चाहिए, अखबार पढ़ना हो या आपको अपनी वोकैबुलरी, जो आपने प्रैक्टिस की बात करी ना, वो प्रैक्टिस कैसे होती है? वो होती है प्रैक्टिस कि आप नए नए शब्द सीखो, नए नए शब्द सीखो, नए शब्दों का प्रयोग करो। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था ना स्कूल में कि आप ये शब्द लिखा है, इसका वाक्य प्रयोग करो, इसके ऊपर 5 सेंटेंस लिखो। तो उस तरह से आप कोई नया शब्द, जिस लैंग्वेज में आपको हिंदी का जर्नलिस्ट बनना हो हिंदी, अंग्रेजी बनना हो तो अंग्रेजी, उस लैंग्वेज में आपकी वोकैबुलरी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे पत्रकार बन पाओगे। इस बात को, तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 चीज़ें आपको सीखनी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात कहकर मैं आप लोगों के सवाल भी लूँगा। देखिए, एक बात को याद रखिए, जैसे मैंने कहा ना कि हर 7 साल में, हर 10 साल में मीडिया बदल जाता है, उसके लिए आपको तैयारी रखनी है। और वो तैयारी रखने के लिए आज के दौर में
जॉब मार्केट में हैं, लेकिन जॉब अगर नहीं है मीडिया के क्षेत्र में, तब भी आप जितना एक व्यक्ति जॉब में कमा रहा है उससे ज्यादा कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं? आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। भारत की आबादी कितनी है? हाँ, 140 करोड़। आपको मालूम है कि 140 करोड़ आबादी में 10 लाख कितना परसेंट की? आप में से किसी का मैथ्स अच्छा है? मेरा मैथ्स तो अच्छा नहीं है किसी का मैथ्स अच्छा नहीं। हाँ, अच्छे मैथ्स वाले तो साइंस में चले जाते हैं, वो तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं। लेकिन मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, 140 करोड़ भारत की आबादी है। इस 140 करोड़ भारत की आबादी में से अगर आप 10 लाख लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अब 10 लाख 140 करोड़ आबादी का 10 लाख मुश्किल से 1% भी नहीं है। मैंने कहा मेरा हिसाब कमजोर है, आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा। 1% भी नहीं है भारत की आबादी में, है ना, आधा % भी नहीं है, उससे भी कम है। तो आप अगर भारत की आबादी के छोटे से हिस्से के लिए उसकी जरूरत के अनुसार अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर आपका इस लाइन में स्वागत है। और आपको मीडिया में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई आपको नौकरी दे नहीं दे, आप दूसरे को नौकरी दे सकते हैं, आप खुद को इस लायक बना सकते हैं अगर आप 10 लाख लोगों की पसंद का जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि मैं तो ये सब चीज़ें मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया रजनी चटोरी का नाम आपने सुना है? चटोरी रजनी, है ना, सुना है ना। अब कौन सोच सकता था कि चटोरी रजनी जो है वो आज अच्छे अच्छे जर्नलिस्टों से ज़्यादा पैसा कमा रही है चटोरी रजनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने और क्या हिंदुस्तान में खाना बनाना भी एक कंटेंट क्रिएट करना है। हिंदुस्तान के अंदर उर्फी जावेद के भी मिलियंस फॉलोअर हैं। तो हिंदुस्तान में मार्केट बहुत बड़ा है, उस मार्केट की समझ आपको होनी चाहिए और उस मार्केट की समझ के हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ये मार्केट बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं फिर से आऊंगा, आप कंटेंट क्रिएटर बनिए, लेकिन मीडिया में किसी चैनल के साथ एसोसिएट होना, किसी चैनल में जॉब करना या किसी चैनल में अच्छा रिपोर्टर होना, अच्छा एंकर होना आज भी एक प्राइड का विषय है। तो वो आपके लिए पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए, पहला आपका प्यार होना चाहिए, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको जो है अपनी नॉलेज एक्सपैंड करनी है, अपनी नॉलेज गेन कीजिए, उसके साथ साथ आप अपनी भाषा पे काम कीजिए, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, अपना उच्चारण सही कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना सीखिए। आजकल के लोग, कितने लोग डायरी मेंटेन करते हैं, कभी लिखते हैं? कितने लोग हैं जो लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी लोग क्यों नहीं लिखते? जो लोग नहीं लिखते वो बताएं क्यों नहीं लिखते। आपको क्या लगता है कि एंकर, जो टेलीविजन एंकर है, रिपोर्टर है, उसको लिखना नहीं पड़ता? उसको लिखना पड़ता है। आज के दौर में पता है क्या है, आज की तारीख में जो चैनल्स हैं ना, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनकी कमाई का जरिया चैनल नहीं है, उनकी कमाई का जरिया डिजिटल है, प्लेटफॉर्म। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जरूरी नहीं है कि हर कुछ जो है वो वीडियो में अवेलेबल हो। हर चैनल आज अपने रिपोर्टर से डिमांड कर रहा है कि भाई आप अगर एक स्टोरी टेलीविजन के लिए कर रहे हैं तो उसको आप डिजिटल के लिए लिख कर भी दीजिए। तो अगर आपको लिखना और एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना भी बहुत जरूरी होता है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना बड़ा, तो लिखना सीखिए। अगेन आपको लिखने के लिए आपको आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी शैली भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो आप करने की कोशिश कीजिए। वो जब तक चीजें नहीं करेंगे तो लिखना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोगों को टाइपिंग आती है? 1 2 3 4 5 6। टाइपिंग तो विशाल जी सिखा देंगे। हाँ, यहाँ पे सिखाते हैं ना लोगों को कि करनी है आपको प्रैक्टिस। मुझे आज तक टाइपिंग नहीं आई, मैं आज भी गूगल इंडिक पे टाइपिंग करता हूँ हिंदी में, मुझे नहीं आती। लेकिन ये मेरा ड्रॉबैक है। आजकल टेक्निक ऐसी है कि उससे गुजारा हो जाता है, लेकिन उसके कारण जानते हैं मेरा सबसे बड़ा नुकसान, मैं आज भी अपना प्रोग्राम करता हूं तो मैं ऑटो क्यू इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा। मुझे बिना ऑटो क्यू के बोलने की आदत है, तो ठीक है मैं कर लेता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरह के आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको बाकी चीज़। तो ये सारी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये आप सीखेंगे तो फिर आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक बात अंत में कह दूं, मुश्किल सिर्फ एक है, अगर आप शाम को 6 बजे के बाद
पार्टी करने का आपको आदत है कि 6 बजे के बाद पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, हर ईद, रक्षाबंधन, दिवाली आपको छुट्टी चाहिए, तो इस लाइन में मत आइए, फिर मत आइए, क्योंकि ये लाइन बहुत डिमांडिंग है। यहाँ पर छुट्टियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई संडे सैटरडे नहीं, यहाँ पे शाम की पार्टियाँ नहीं होती हैं। मेरा शो रात को 9 बजे से आता था पहले, अब रात को 10 बजे आ रहा है, तो 10 से 11 बजे मेरा शो होता है, जिसके लिए शाम को 4-5 बजे से प्रिपरेशन शुरू होती है और 11 बजे डिलीवर होता है। उसके बाद गेस्ट जो स्टूडियो में आते हैं उनको छोड़ते छोड़ते 11:30 बज जाते हैं। तो उसके बाद जो है, मतलब मैंने शायद अपने रिलेटिव्स की कितनी पार्टियां मिस करी हैं मैं नहीं जानता। अगर सैटरडे संडे जब मेरा शो नहीं होता तब उनके पार्टियों में चला जाता हूँ, लेकिन अगर वीकडेज में किसी का शो होता है, किसी के यहाँ पार्टी होती है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। मेरे फ्रेंड्स अक्सर जो है स्कूल टाइम के फ्रेंड्स, वो फ्राइडे को जो है पार्टी करते हैं, लेकिन मैं उनकी पार्टी में नहीं जा पाता क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, मेरी जॉब का नेचर ऐसा है। तो ये मेहनत करने के लिए, और आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि ज़्यादा सोने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम से खाने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपके साथ लाइफ में होंगी। इसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आपके पास, मतलब आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि अब सवाल आप करें, क्योंकि आपके लगातार ये सब चीज़ें हो रही है, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता। अभी मीनाक्षी जी आई थी, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहता जो आपको रिपीटिशन लगे, इसलिए आपकी जो स्पेसिफिक क्वेरी होगी, स्पेसिफिक सवाल होंगे, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसा निकलवा लें जो आपके लिए किसी काम का हो आने वाले दिनों में। जी चलिए। जी सर, हाँ, हम सबको पता आप इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से हैं, 30 इयर्स, बहुत लंबी जर्नी है। तो कभी आपको लगा कि क्या आप गिव अप कर दोगे, और फिर ऐसा कुछ हुआ जो आपको इंस्पायर कर दे कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है? ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। क्या होता है कि मैंने कहा कि एक तो मैं अगर 30 साल से सरवाइव कर रहा हूँ तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि मैं सीखता रहा चीज़ें। दूसरा बड़ा कारण यह है कि लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन नहीं आते, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? ये होता है कि आप अपने आप को रोज़ के लिए तैयार कर रहे हो। हमारा रोज़ इम्तहान होता है। मान लीजिए मैंने कल जो है इंडिया चुनाव आयोग के ऊपर डिबेट करी, बहुत संभव है आज मुझे रशिया और इंडिया रिलेशन पर डिबेट करनी पड़े। तो आपको रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ने का मौका मिलता है, रोज़ नई नई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इसको देखने का एक नज़रिया ये भी है कि आप रोज़ नई चीज़ें सीख रहे हैं, आपको जो चीज़ नहीं पता थी वो भी आप सीख रहे हैं। तो वो चैलेंज है आपके सामने। लेकिन कभी इस तरह की, और जैसे आपने कहा ना कि बहुत बार ऐसा आया, जब पिछले दिनों मेरा टीवी शो जो है वो पहले 9 से 10 आता था, लेकिन जब उसका टाइम चेंज करने की बारी आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि 9 से 10 तो प्राइम टाइम होता है, अब 10 बजे आपके लिए आना बड़ा मुश्किल होगा, 10 बजे आपका प्रोग्राम खड़ा करना मुश्किल होगा। मुझे भी ऐसा लगा कि भाई 10 बजे शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैंने एक बार फिर से सोचा, मैं सब सोशल मीडिया पे गया तो सोशल मीडिया पे लोग, मेरा प्रोग्राम पिछले दिनों बंद हुआ कुछ दिन के लिए, और उसके कई कारण थे। एक कारण यह था कि कर्नाटक में ये भी चैलेंजेस आते हैं। कर्नाटक की सरकार ने मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज दी थी, 8 पुलिस वाले मेरे दफ्तर में आ गए थे मुझे गिरफ्तार करने के लिए। फिर मैं अंडरग्राउंड हो गया 15 दिन तक अंडरग्राउंड रहा, तब तक हाई कोर्ट से स्टे लिया, उस बीच मेरा प्रोग्राम बंद हुआ। तो मेरे सामने चैलेंज ये था कि अपने प्रोग्राम को दोबारा खड़ा करना था। लेकिन मैंने देखा कि जब आप उसी पैशन के साथ, उसी मेहनत के साथ करते हो, मैंने 10 बजे जब शो शुरू किया तो लोग कहते थे कि डीडी 10 बजे लोग देखते नहीं हैं, लेकिन आपको मालूम है 1 महीने के अंदर अंदर मेरा जो टीआरपी में हम लोग दूसरे नंबर पर आ गए। अभी पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर आ गए। तो अप्स एंड डाउन आते हैं ज़िंदगी में, चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने लिए सोच के चलो कि मुझे एक लक्ष्य अचीव करना है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़े। चैलेंजेस आएंगे, आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे। हर न्यूज़ रूम के अंदर बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे, कोई आपको कुछ कैसे ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ नहीं होती, हर फील्ड में ये सब चीज़ें होती हैं।
तो इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, अप्स एंड डाउन तो लाइफ का एक हिस्सा है। थैंक यू सर। मेरा प्रश्न नहीं है, 3 बातें मैं आप लोग के लिए बताने के लिए माइक लिया है मैंने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, दूरदर्शन एक ऐसी चीज़ थी कि अब सरकारी महकमे में वो सरकार की बात आपको करनी है, तो सर ने लड़के नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और उस पर किताब भी है, ठीक है, वो उसका जिक्र अशोक सर अभी करेंगे। और उस इंटरव्यू को रोकने के लिए पूरी सरकार लग गई थी कि इस इंटरव्यू को हम दूरदर्शन पे ना दिखाएं। इन्होंने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, मैं कहा सर जिस दिन काउंटिंग थी, मैं कहा रहेंगे कि जाएंगे? बोले बताते हैं शाम तक कि सरकार अगर बदल गई तो नौकरी बच गई, लेकिन उनको कई दिन तक बाहर कर दिया गया था। उसके बाद इनकी जो पहली बुक है नरेंद्र मोदी अनसेंसर्ड सनसेट, वो फैक्ट चेक के लिए बड़ी अच्छी किताब है। दूसरी बुक है खान मार्केट वर्सेस मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। खान मार्केट वर्ड कहाँ से आया ये आप लोग को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने ही खान मार्केट वर्ड दिया था। जो लोग इंडियन हैबिटेट सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में कॉफ़ी पीते पीते देश के बारे में बात करते कि देश कितना ख़राब हो गया है, ये उन पर किताब है। ये दोनों किताबें सर की लिखी हुई हैं। मैं और मैम को जाने का मौका भी मिला था इसकी लॉन्चिंग में। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अभी जो सर ने कई सिनेरियो बताए ना कि पुलिस आ गई, बीमार भी पड़ गए थे बीच में, और कहाँ रहे थे मुझे मजा था, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ ये है कि ऐसा नहीं कि प्रेशर रहे। और जो डोटो कार्यक्रम है ना, सरकारी चैनल के अंदर विपक्ष को मौका देने वाले अशोक सर हैं कि आप आइए, अपनी बात तो रखिए आप आके। बाकी सब तो सरकार अच्छा कर रही है, सरकार सब कुछ बताते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो बात करते। तो 2 किताबों के बारे में ज़रूर मैं चाहूँगा आप जिक्र करें। और वो जो इंसिडेंट था, बहुत बड़ा मामला वो उठा था, उसके ऊपर वो पूरी किताब भी है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। खान मार्केट गैंग जो फैक्ट चेक के ऊपर है, और वो मोदी, वो जो पहली जो किताब है जिस पे इंटरव्यू नहीं छपने दिया गया था, प्रियंका गांधी ने, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था वो, उसके पढ़िएगा और गूगल करिएगा, ठीक है। तो सर, तो विशाल जी जो कह रहे हैं, एक्चुअली वो चुनौती बहुत बड़ी थी, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन अब विशाल जी ने कहा है तो देखिए, वो एक ऐसा दौर था, ऐसा टाइम था कि मैंने बाकायदा अपने ऑफिस के कहने पर ही नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, जब नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता थे। लेकिन सरकार ने तय किया कि उस इंटरव्यू को टेलीकास्ट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया सीखी थी, वो मेरे लिए सोशल मीडिया सीखना उस वक्त जो है मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं हो रहा था तो मैंने चुपके से, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ी दुख क्या होता है, आप अपने ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल है, आप उसका इंटरव्यू कर रहे हो और आपका ऑफिस सडनली कहे कि आपका इंटरव्यू नहीं जाएगा। ये चैलेंजेस होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, सोचते हैं कि हम मीडिया में जा रहे हैं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज़रूर ये भाव लेके जाना चाहिए, लेकिन वो चुनौतियाँ होती हैं कि आपको वो करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। तो वो इंटरव्यू जो मैंने अपने ऑफिस के कहने पर किया, उस इंटरव्यू को रोकने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी चतुराई करी, मैंने उस खबर को लीक कर दिया सोशल मीडिया पे। और जब वो खबर लीक हो गई तो उसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ कि 2014 के चुनाव, अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे तो 10 दिन तक मेरा इंटरव्यू जो है सुर्खियों में था। अशोक श्रीवास्तव, उस वक्त जो है अशोक श्रीवास्तव जो कह रहा था, मैं जो ट्वीट कर रहा था, वो खबर बन रही थी, लोग उसको खबर के रूप में छापते थे। मुझे हर टेलीविजन चैनल अपने डिबेट में बुलाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस पूरे जो बवाल हुआ उसके सेंटर में था। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं था। और 2014 में मेरे लिए जो है बाकायदा जो है मेरी श्रद्धांजलि लिख दी गई थी, और ये तय कर दिया गया था कि नई सरकार आती, मुझे दूरदर्शन से हटा दिया जाएगा। मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार हो गया था कि मैंने क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। 2014 में सरकार जो है वो पलट गई, और जब सरकार पलटी तो, लेकिन उसके बावजूद मुझे 3 महीने तक शंट कर दिया गया था। मतलब इतना सीनियर होने, और हर किसी को लाइफ में शुरू में करना पड़ता है। मैं नाइट की बुलेटिन पढ़ता था, अर्ली मॉर्निंग बुलेटिन पढ़ता था, लेकिन जब आप सीनियर हो जाते हो तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तब आपको प्राइम टाइम मिलता है, क्योंकि आप सीनियर होते हो तब आपको प्राइम टाइम मिलता है। लेकिन जब मैं प्राइम टाइम हो चुका था, तब मुझे जो है नाइट एंकरिंग में लगाया गया, तब मुझे अर्ली मॉर्निंग एंकरिंग में लगाया गया, ताकि मैं खुद छोड़ के भाग जाऊं। वो सब चीज़ें आई, 3 महीने तक मुझे शंट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली,
और बदली तो उसके बाद मैंने बाउंस बैक किया। तो लाइफ में ये चैलेंजेस आते हैं। वो 3 महीने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद मुझे सज़ा मिल रही थी। लेकिन वो 3 महीने गए। आप गूगल कीजिएगा, आपको अशोक श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी 2014 इंटरव्यू, आपको बहुत खबरें मिल जाएंगी। फिर मैंने उस पर नरेंद्र मोदी सेंसर्ड किताब लिखी। वो किताब इसलिए लिखी क्योंकि दरअसल किस तरह के प्रेशर एक जर्नलिस्ट के सामने होते हैं और कैसे फिर उससे सर्वाइव करता है, और वो सारी कहानी मैंने लिखी। और जिस दूसरी किताब का जिक्र किया वो मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसके बारे में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आप मीडिया की लाइन में आएंगे। देखिए, इस बात को याद रखिए, आज की तारीख में बहुत कुछ फेक न्यूज़ जो हैं और फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं। सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, जिसका फ़ायदा मैंने भी उठाया, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव खड़े किए जाते हैं। जैसे अगर आप आज मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये जो वोट चोरी वाला जो नैरेटिव है, ये पूरी तरह से फेक है, फर्जी है। कोई वोट चोरी, भारत में वोट चोरी हमेशा से होती आई है। भारत में जब मैंने नलिनी सिंह के साथ काम किया, आप जाके देखेंगे तो नलिनी सिंह ने इस देश की राजनीति में वो पत्रकार हैं जिन्होंने सबसे पहले टेलीविजन पर यह दिखाया कि बूथ इलेक्शन में बूथ कैसे लूटे जाते हैं। बिहार में 80s का दशक था, उन्होंने बाकायदा दिखाया कि कैसे बंदूक लेकर लोग जाते थे वो बांध करके, और उस वक्त बैलेट पेपर होते थे, और कैसे बैलेट पेपर लेकर बंदूकधारी जो है वो ठप्पे लगाते थे और डाल देते थे। तो यहाँ पर वोट की तो लूट होती रही है, लेकिन आज हमारा जो वोटिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा जो है बेहतर हो चुका है। कमियां आज भी हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश जारी है, टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो है ये नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव है कि भारत में वोट चोरी होते हैं। तो इसलिए इन नैरेटिव से सावधान रहने की ज़रूरत है, और इन्हीं नैरेटिव्स को, ऐसे फेक नैरेटिव्स को बर्स्ट करने के लिए मेरी दूसरी किताब थी मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, जिसमें जो तमाम फेक नैरेटिव भारत में गढ़े गए, उन फेक नैरेटिव को मैंने एक्सपोज किया था। और अब मुझे लगता है उसका पार्ट 2 की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने किताब लिखी 2024 में वो किताब आई थी, अब उसके बाद से इतने सारे फेक नैरेटिव आ गए कि अब लगता है उस पार्ट 2 की भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत की राजनीति में बहुत कुछ जो है झूठ गढ़ा जाता है। तो झूठ से सावधान रहने की ज़रूरत है, उसके ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। और वो आप कैसे करेंगे, वो आप तब सीखेंगे जब आप फैक्ट्स जो हैं अपने करेक्ट रखेंगे। फैक्ट्स को जानना, समझना और हर चीज़ को फैक्चुअली चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, नलिनी सिंह के साथ ही मुझे याद आ रहा है कि मैं नलिनी सिंह जी के साथ जब था तो मैं वहाँ पर एक तरह से मैं डेस्क पे सारा एडिट मैं ही करता था। हमारे पास एक स्टोरी आई और वो स्टोरी हमारे रिपोर्टर ने भेजी। वो रिपोर्टर क्या था, वो रिपोर्टर हमारा जो है राजस्थान का रिपोर्टर था। उसने, क्योंकि नलिनी जी का ये बड़ा पैशन रहता था कि जो बूथ लूटे जाते हैं उसको लेकर रिपोर्ट की जाए, तो राजस्थान से हमारे रिपोर्टर ने खबर भेज दी जिसके अंदर उसने दिखाया कि राजस्थान में इलेक्शन थे उस समय, तो उसने दिखाया राजस्थान में बड़े, उसने विजुअल दिखाए, विजुअल में क्या दिखाया कि बहुत सारी गन्स, बंदूकें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद उसने एक व्यक्ति का बाइट इंटरव्यू दिखाया। उस व्यक्ति ने जो है मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और उसने कहा कि हम लोग बिहार से आए हैं और हम लोग राजस्थान में जो चुनाव हैं उन चुनाव में हम बूथ लूटने के लिए आए हुए हैं, और सारी गन वन दिखा दी। अब आप सोचिए कि वो रिपोर्ट आई और नलिनी जी ने कहा कि अशोक इसको तुरंत आज एयर करो। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट को देखा कि उसमें गन्स दिख रही हैं, उसमें वो आदमी दिख रहा है जो कह रहा है कि मैं बूथ लूटने के लिए आया हूं। पर ये क्या स्टोरी कंप्लीट है? क्या ये स्टोरी कंप्लीट है? क्या इसमें कमी है? हाँ, क्या कमी है इसमें? ये स्टोरी इनकम्प्लीट क्यों है? नहीं, वो किसके कहने पे भेजा वो तो नहीं बताएगा। वो क्यों बताएगा कि मैं इसके लिए वोट लूटने आया हूं? वो तो नहीं बताएगा वो वोट लूटने आया। वो तो किसी एक पार्टी ने उसको एंगेज किया, वो आया, वो बता रहा है, पर वो मुंह से कह रहा है कि मैं लूटूंगा जी, मेरे उसकी गन दिख रही है कैमरे पे। पर इस स्टोरी में मिसिंग क्या है? हाँ, फोटो है ना, बंदूक दिखा रखा है और लूटने वाला खुद कह रहा है कि मैं लूटने के लिए आया हूं बिहार से। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक चीज है, वो तो फैक्ट चेक आप करते रहे, लेकिन इसमें मिसिंग क्या है? इसमें मिसिंग है कि इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं है। इस स्टोरी में हमेशा जब आप कोई स्टोरी करेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, कोई भी स्टोरी एक पक्षीय नहीं होती, दूसरा पक्ष मिसिंग है। तो मैंने नलिनी जी से कहा, मैडम इसमें दूसरा पक्ष नहीं है। बोली दूसरा पक्ष? मैंने कहा इसमें कम से कम जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बाइट होनी चाहिए,
कि क्या उसको सतर्क है, उसको पता है कि नहीं पता कि बूथ लूटने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अरे तुम एक दिन, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था कि आपने वहाँ इंटरव्यू किया, मोबाइल पे क्लिप भेज दी। उस समय हम लोग रिकॉर्ड करते थे, राजस्थान से जो फ्लाइट आती थी उस फ्लाइट में टेप आता था, हमारा लड़का एयरपोर्ट पे जाता था, वो टेप उठाता था, उसके बाद वो एडिटिंग टेबल पे आके एडिट होती थी। तो मैंने कहा ये स्टोरी इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने कहा कि इसको, मैंने कहा इसको कम से कम हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो मुझ पे गुस्सा भी हुई कि तुम इतनी बढ़िया स्टोरी है, किल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, कल करेंगे। अल्टीमेटली हमको इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी नहीं मिला, लेकिन मैंने उसका फ़ोन इन लिया। एक जो चुनाव अधिकारी था राजस्थान का, उसका मैंने फ़ोन इन लिया। और जानते हो फ़ोन इन पर उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि हमें मालूम है, हमें इस बात की जानकारी है कि बूथ लूटने की कोशिश होंगी, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और हमने पुलिस का बंदोबस्त पूरा किया है। अब ये स्टोरी कंप्लीट थी। इसमें बूथ लूटने वाला भी कह रहा है कि मैं बूथ लूटने आया हूं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें मालूम है ऐसा होने वाला है, लेकिन हमने इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टोरी कंप्लीट थी, हमने एयर कर दिया। स्टोरी एयर करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? एक हफ्ते बाद हमारे ऑफिस में राजस्थान की पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस एक समन लेकर आई थी, और समन था कि आपने फेक न्यूज चलाई है। फेक न्यूज आज इतना बड़ा संकट है, मैं आपको बता रहा हूं, 90s की बात बता रहा हूं। पुलिस ने आकर कहा ये फेक न्यूज है, इसलिए अरेस्ट के लिए आए थे। फिर हमने कोर्ट में सब, मालूम है फेक न्यूज क्यों थी? हमारा जो रिपोर्टर था उसने क्या किया, उसने जाकर एक गन फैक्ट्री में गन्स की तस्वीर ले ली। अब गन फैक्ट्री में तो गन्स पड़ी होंगी, और उसने किसी रिक्शे वाले को पैसे देकर उसकी बाइट ले ली। वो कह रहा था कि हाँ मैं चुनाव लूटने आया हूं। अब वो फेक न्यूज पकड़ी कैसे गई? जिसकी फैक्ट्री दिखाई गई थी उसने वो स्टोरी देख ली। उसने पुलिस में कंप्लेन करी कि मेरे पास एक रिपोर्टर आया था, उसने कहा जी आपकी फैक्ट्री को शूट करना है, और उसने उसको अवैध असला दिखा दिया। और इस चक्कर में जो है वो पूरी की पूरी वो केस 3 साल तक चला। लेकिन 3 साल केस चलने के बावजूद वहां की जो सरकार थी इस स्टोरी को फेक साबित नहीं कर पाई। हालांकि वो स्टोरी फेक थी, फेक साबित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वहां का मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहा है कि हमें जानकारी है, हमें जानकारी है कि बूथ लूटने आए हैं। इसका मतलब हमारे विजुअल्स गलत थे, उसको हमने एक्सेप्ट करा कोर्ट में कि हाँ हमारे जो रिपोर्टर है उसने गलत विजुअल भेजे, लेकिन वो स्टोरी सही थी। तो इसका मतलब ये है कि कई बार जो आंखों से दिखता है ना वो भी झूठ होता है। तो आपको एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट आपको फैक्ट चेक खुद से करने हैं, नहीं तो आप किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, my question is that is DD News have enough space for decent voices? Decent voices का मतलब, decent voices को elaborate करें। हाँ, decent voices आपने कहा ना, decent Yes, voices को elaborate करें। बताओ decent voices का मतलब क्या? मैं decent नहीं हूँ क्या? 23 साल से डीडी में मैं भी decent हूँ। तो मतलब अगर मेरे को जेल में है तो इसका मतलब decent लोग रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा आप बताइए स्पष्ट करके कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों नहीं है जो सरकार को गाली देते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बताओ डिसेंट वॉइसेस से आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझसे हर कोई सवाल, देखो मुझसे कुछ भी सवाल पूछो, मुझे चिंता नहीं है। आप मुझे ये भी कहो ना, आप ये भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि आपको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सवाल पूछें, खुलकर सवाल पूछिए, और सवाल पूछने का जज्बा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि कभी किसी से सवाल, क्योंकि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको सवाल पूछने की ताकत होनी चाहिए। सवाल पूछने में आपको किसी से डर नहीं लगना चाहिए। सर मे बी उसका कहने का मतलब वो कि यंग वॉइसेस अच्छा डिसेंट यंग नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ तो अभी जो है करीब 20 से 25 जो है यंग लोग आए हैं। हमारे यहाँ तो हर थोड़े दिन में जो है रिक्रूटमेंट होता है और यंग्स आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यंग्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोर्स करेंगे, ख़त्म करेंगे, हो सकता है जब तक आप यहाँ से निकलेंगे तब तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, सबसे पहले तो हम ही लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, बाकी चैनल्स के तो एडवर्टीजमेंट आते नहीं। हम तो फिर भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमें जो है कॉपी एडिटर चाहिए, हमें रिपोर्टर चाहिए, उसमें लोग भरते हैं और उसके बाद आते हैं अपने क्वालिटी पे। ऐसा नहीं है, यंग्स के लिए बहुत स्पेस है, बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अगर दूरदर्शन ज्वाइन करना है ना तो इसका पूरा एक लंबा प्रोसेस है।
ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पहुँचे और पर्ची लेके पहुँचे, साहब ये इसको मैं जानता हूँ, मेरे को अब ऑडिशन ले लें, नहीं होगा। वहाँ प्रॉपर ऑडिशन होता है। मेरे बहुत अच्छे एंकर हैं, कई की सिफारिश मैंने भी की थी, लेकिन अशोक सर ने उनको नहीं लिया। अशोक सर भी जानते हैं कि वहाँ पर आपका एक ही है कि आप स्क्रीन पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रिटन टेस्ट में और प्लस उसमें प्रॉपर सरकारी तरीके से वहाँ पे। और दिस इज़ द वे एक एंकर को सेलेक्ट करने का, पूरा उनका प्रोफाइल बनता है, पूरा उसकी एडिशन होता है। प्रसार भारती के थ्रू आप एम्प्लॉय होते हैं, अब आप बेसल के थ्रू नहीं होते। तो किसी भी पोजीशन में आप जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का अगर दूरदर्शन में जाना है तो अपने आप को बहुत मजबूत अब करना पड़ेगा। एंकर के लिए विशाल जी ने बताया, एंकर के लिए तो स्क्रीन टेस्ट होता है। रिपोर्टर्स को भी अपनी पीस 2 करनी पड़ती है। रिपोर्टर्स को भी उसी वक्त बोला जाएगा कि आप समझ लीजिए ये स्टोरी है, इसका पीस 2 आपको करना है, तो कैमरा आपके सामने। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपका टाइम यहाँ पर है उसका बेस्ट यूज़ कीजिए, कैमरा फ्रेंडली होइए, कैमरे के सामने पीस 2 करिए, कैमरे के सामने पढ़िए, नई नई चीज़ें सीखिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जो है मुश्किल होगी। जी सर, जैसे आप 30 इयर्स तक इस फील्ड में हैं, आपको विद टाइम नहीं लगा कि डीडी छोड़ के कोई दूसरा चैनल? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, कई बार मन करा कि भाई मैं डीडी छोड़ दूं। क्योंकि क्या है, प्राइवेट चैनल में फ़ायदा क्या होता है, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है। डीडी में पैसा थोड़ा कम मिलता है, बिकॉज हम लोग एक फॉर्मेट में है, एक अल्टीमेटली प्रसार भारती एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की एक अपनी वो होगी। तो कई बार लालच आता है कि ज़्यादा पैसे के लिए चले जाएं, लेकिन क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या जर्नलिज्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए? तो मुझे देखिए, डीडी में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक तरह की आज़ादी मिलती है। आज़ादी आपको ये मिलती है कि आप अपना काम कर रहे हैं और अपना काम आप अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको अननेसेसरी कोई उंगलबाजी नहीं करेगा। जैसे प्राइवेट चैनल में क्या होता है, वहाँ पर आपको एक दूसरे को काट में बहुत लगे रहते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो प्राइवेट चैनल में हैं, जिन लोगों ने अपनी जगह बना ली वो तो ठीक है, बाकी लोगों के बीच ऐसा गला काट वो चीज़ होती है कि, और पॉलिटिक्स बहुत होती है। सडनली क्या होता है, चैनल का एडिटर जो है वो शिफ्ट हो गया, अब किसी चैनल में कोई एक बड़ा एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो चला गया, तो उसके साथ साथ नीचे पूरी टीम का सफाया हो जाता है। आपने उस चैनल को बेस्ट दिया, फिर भी आपको रातों रात वो चैनल निकाल देगा, क्योंकि एडिटर नया आ गया, तो एडिटर अपने लोगों को लाएगा। ये सब कुछ प्राइवेट चैनल में बहुत होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक डिसेंट काम करते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है छोटी सी। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है यूपीए की सरकार थी, तो टेलीविज़न पर सोनिया गांधी जी जो है चेयरपर्सन थी यूपीए की, तो यूपीए की जो एक्टिविटी थी वो दिखाई जाती थी डीडी पर। तो जब डीडी पर वो दिखाई जाती थी तो सोनिया गांधी काफ़ी आती थी दूरदर्शन पर। तो मैं एक प्रोग्राम में गया, उसमें प्राइवेट चैनल के मेरे दोस्त बैठे थे, तो जैसे ही मैं गया तो एक आज तक का मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला सोनिया गांधी के चैनल का आदमी आ गया, ऐसा बोला। तो मैंने कहा चलो सोनिया गांधी के चैनल का आदमी हूँ, कम से कम थोड़ी इज्जत तो बाकी है, तुम तो राखी सावंत के चैनल के आदमी हो। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त राखी सावंत और मीका पर आधे आधे घंटे के प्रोग्राम बनते थे। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। मीका सावंत ने एक बर्थडे पार्टी में राखी सावंत को जबरदस्ती किस कर लिया और उसके ऊपर आधे आधे घंटे के प्रोग्राम बनते थे। तो मैंने कहा भाई सोनिया गांधी का चैनल होना इज्जत की बात है, कम से कम राखी सावंत और मीका के चैनल में तो मैं नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कितना अच्छा है कि मैं टेलीविजन चैनल में हूँ। फिर एक दौर वो आया टेलीविजन में, जब टेलीविजन में भरमार हो गई, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब मतलब हर चैनल क्राइम की स्टोरी दिखा रहा है, चैन से सोना है तो। और आजकल क्या दौर है, आजकल दौर है बाबाओं के ऊपर आधे आधे घंटे के प्रोग्राम दिखाओ। ये इन बाबा ने ये कहा, उन बाबा ने ये कहा, इन बाबा ने ये गलत कहा, इन बाबा ने वो गलत कहा, इनके दरबार में ये गया, इनके। तो भैया ऐसी पत्रकारिता करने से अच्छा है कि मैं जहां हूं इज्जत की पत्रकारिता कर रहा हूं। पैसा थोड़ा कम है लेकिन इज्जत की नौकरी है कि डीडी में। और दूसरी बात है कि स्टेबिलिटी है, अपना काम कर रहा हूँ, मजे से कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, डीडी में नौकरी भी कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे पास कोई परेशान करने के लिए कॉल नहीं करेगा। उनको पता है कि अशोक श्रीवास्तव 3 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे और उनका प्रोग्राम बढ़िया होगा, तो इसलिए मुझे कोई उंगली ही नहीं करता। तो वो इज्जत की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, इसलिए मैं डीडी में ही हूँ। ताली बजा दी मतलब सवाल खत्म? ओके, नहीं कुछ है। हाँ। सर एक सवाल था कि मैम ने भी हमें बहुत बार बोला कि 30 सालों में कितनी सरकारें बदली आई, लेकिन आप अभी भी है। तो सर
इतने सालों में आपको लाइफ थ्रेट्स, मतलब इंसान को डर तो लगता है कि वो न्यूज़ बता रहा है एक चीज़ और सामने वाली जो पार्टी है कुछ भी उनको पसंद नहीं आता और उनके बारे में सवाल उठ रहे हैं, तो लाइफ थ्रेट्स तो बहुत आई होंगी आपको। तो वो क्या चीज़ है जो वो डर को, मतलब आप अभी हो, वो डर आपको कुछ फ़र्क नहीं करा? देखो, आप गूगल करना, शायद आपको खबर मिल जाएगी। 2011 में मैं किडनैप हुआ था और मैं 6 घंटे तक किडनैपर के साथ था। 3 गनमैन थे, एक पिस्टल मेरे यहाँ लगी थी, एक पिस्टल यहाँ लगी थी और एक पिस्टल वाला गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 6 घंटे में उन किडनैपर्स के साथ था। और उस पूरे दौर में एक समय ऐसा आया जब हम लोग किसी वेस्टर्न यूपी के किसी ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ पर वो किडनैपर शराब पी रहे थे और दिसंबर का महीना था, वो आग ताप रहे थे। उस समय मुझे लगा कि अब शराब पीने के बाद ये मुझे गोली मार देंगे, ठीक है। मैंने मौत को इतनी करीब से देखा। लेकिन और इसके अलावा जब मैं कश्मीर रिपोर्टिंग करने गया, कश्मीर में भी ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी आगे गई और पीछे जो है हैंड ग्रेनेड किसी ने फेंक के मारा। मेरी गाड़ी पे पत्थर पड़े कश्मीर में, मेरे होटल के अंदर जहाँ मैं था, और वो दौर जब मोबाइल नहीं होते थे, उस दौर की बात बता रहा हूँ। मेरे होटल के अंदर कुछ टेररिस्ट घुसे, किसी को ढूंढ रहे थे, वो भी मैंने दौर देखा। तो कई बार देखा कि मौत बहुत पास से आके निकल गई। तो मेरा उसके बाद ना ये बिलीव हो गया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मतलब भगवान ने जब तक लिखा है कि मैं जिंदा हूँ, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। तो इसलिए किसी चीज़ से डरने, अभी पिछले 1.5 हफ्ते पहले मेरे घर पे पुलिस आई और पुलिस आके, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, अपने आप को कलम का सिपाही मानता हूँ। अब मुझे पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप एक पिस्टल के लिए अप्लाई कर दो। मतलब पुलिस वाले आके कह रहे हैं पिस्टल के लिए। मैंने कहा मैं क्या पिस्टल का करूँगा, क्यों? क्योंकि अभी 2 महीने पहले मुझे सर तन से जुदा की धमकी आई। सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने थ्रेट किया कि तुम्हारा सर जो है हम काट देंगे। तो मैंने उसकी कंप्लेंट की, तो पुलिस ने कहा आप कम से कम एक पिस्टल एक ले लीजिए, ताकि आप रात बिरात आते हैं, आपकी इतनी सिक्योरिटी। तो चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, डेथ थ्रेट भी होती हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं। हाँ, सावधान आपको रहना चाहिए। तो जैसे जब कश्मीर में मैं जाता हूँ, या वैसे अब जैसे जब ये थ्रेट आई, उसके बाद मैं रात को जब मैं जाता हूँ तो मैं एक बार आसपास देख लेता हूँ कि भाई मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ तो कुछ ऐसा तो नहीं है, या मैं अपना रूट जो है कई बार बदल के जाता हूँ। वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं अपनी, ताकि आप सर्वाइव कर सको। वरना पर एक बात और भी है ना, देखो बेटा, किसी की अगर मौत आती है तो ज़रूरी नहीं कि कश्मीर जाकर वो आतंकवादियों के हाथे मरेगा। कोई दिल्ली में एक्सीडेंट में ही मर जाएगा, कोई बेचारा अपने घर में बैठा होगा और बादल बर्स्ट हो गए, वो बेचारा वैसे भी। तो जब मौत आनी है वो आनी है, उसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक ज़िंदगी है तब तक जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है, अपने कर्तव्य पूरे करो, अपने काम करो, ठोक के काम करो, डरो नहीं। अभी भी डराने के लिए लोग बहुत कुछ लिखते हैं, करते हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सर तो क्या आपने गन इशू कराई? नहीं, अभी नहीं कराई। मुझे अभी तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की बात है। अब उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो लोग तो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन मुझे देखना है कि मुझे लेनी या नहीं लेनी, क्योंकि गन रखना भी अपने आप में एक समस्या है ना। बट सर सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ, तो गोविंदा ने भी तो सेल्फ डिफेंस के लिए रखी थी। तो मतलब कहने का मतलब उसमें हर्ज नहीं है कोई रखने में आज की तारीख में अपनी, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ होता ही नहीं ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो होने में कोई हर्ज नहीं है। बट अब पुलिस ने कहा है तो सोचना पड़ेगा, हो सकता है ले लूँ। सर हाँ जी। सर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाता है? लाइक आप अभी यहाँ पे एकेडमिक्स में आके यंगस्टर्स को बता रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप बुक लिख रहे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीखते हो? ऑल्सो आपने जो अपने ओपिनियंस डाले हैं बुक में, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग वाले में, तो उसमें बुक राइटिंग के ऑथर्स जो होते हैं, ऑल्सो दोज एंकर्स वगैरह जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनकी राइटिंग में चेंजेस होते हैं, तो वो सब आपने उसको कैसे सीखा? मैंने इसीलिए पहले कहा आपको कि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर आप लिखने की आदत अपनी डालेंगे तो आप धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। और अच्छा लिखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना हर व्यक्ति को आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये है कि एंकर लिंक लिखना और किताब लिखना दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने जो किताब लिखी है जिसने पढ़ी होगी उसको लगेगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में, टेलीविज़न की लैंग्वेज में, और लोगों को यही बात पसंद भी आई।
तो किताब लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसको साहित्यिक भाषा में ही लिखना है, मुझे अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, मेरा अपना स्टाइल हो सकता है। अगर मैं कॉपी करूंगा कि मैं फलाना आदमी की जैसे लिखूं तो फिर वो कॉपी हो जाएगी। मुझे अपना स्टाइल डेवलप करना है तो मैंने डेवलप किया, लोगों को पसंद आया तो मैं उसी स्टाइल से लिखता हूँ। जहाँ तक आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होता है। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ, करीब 15 दिन हॉस्पिटलाइज था। मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आप नींद कम लेते हो, ठीक है। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो 2 किताबें लिखी, दोनों किताबें, मेरा 10 बजे शो ख़त्म होता था, उसके बाद 11 बजे से मैं अपनी किताब लिखने बैठता था और सुबह 3 बजे तक 4 रात को, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में बहुत सारी चीज़ें होती है, दिन में लोगों से मिलना जुलना होता है, तो मैं रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे तक किताब लिखता था। तो इसका मतलब 4 बजे लिखता था, फिर घर पहुंचता था, फिर सोता था, 10 बजे फिर वापस उठ करके तो टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है। आज भी टाइम मैनेजमेंट चैलेंज है। मैं यहाँ पर आधे घंटे या 20-25 मिनट लेट से पहुँचा, क्यों? क्योंकि मैं कल रात को 2 बजे पहुँचा था, बिकॉज रात को पढ़ने का टाइम अच्छा होता है। मैं रात को हमेशा शो ख़त्म करने के बाद पढ़ता हूँ, तो 2 बजे जब आप पहुँचोगे, सोओगे, तो सुबह 7-8 बजे तो नहीं उठ सकते हो। तो लाइफ ऐसी हो गई है कि हम सुबह की ज़िंदगी भी हमने सूरज उगते हुए देखे हुए बरसों हो गए। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, इस लाइन की मजबूरी है। अगर मेरा शो 11 बजे है तो मैं सोचूं कि हाँ, जैसे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अब मैंने एक चेंज किया अपनी लाइफ में, पहले मैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आता था, तो मैं डिनर अपना घर आके करता था। अब मैंने वो बंद कर दिया, बिकॉज अगर आपको टेलीविज़न में रहना है तो आपको फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो फिर टेलीविज़न में सर्वाइव कैसे करेंगे? तो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने अपना जो डिनर है रात को 8 से 9 बजे में कर लिया, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है आप जो डिनर करते हो, डिनर करके सोने के बीच 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो मैं 8 बजे 9 बजे तक डिनर कर लेता हूँ, फिर मैं 2 बजे तक सोता हूँ। तो वो चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके लिए आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं। मैंने कहा मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है गाड़ी उठाओ, नैनीताल चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मेरे दोस्त लोग कहते हैं कई बार कि चलो यहाँ घूम कर आते हैं, पर वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, वो मोह माया छोड़नी पड़ती है, तब आप जाकर इस्टेब्लिश होते हैं। क्योंकि देखिए चुनौती क्या होती है, मेरा शो डेली आता है, ठीक है, एक दिन शो नहीं आएगा तो चुनौती क्या है कि मुझे अपने आप को वहाँ सर्वाइव करना है, मुझे अपना बना कर रखना है। मेरे व्यूअर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगर 2 दिन 3 दिन नहीं आऊँगा तो व्यूअर हो सकता है कि टेलीविज़न वो चैनल बदल लें, उनके पास दूसरे ऑप्शन है। मुझे उनके साथ लगातार जुड़े रहना है, ये आपके सामने चैलेंज है। इसलिए मैंने कहा कि मेहनत करने के लिए कमर कसिए, मेहनत का कोई आपका वो नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और लास्ट में एक बात और कह रहा हूँ, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मुझे नहीं मालूम आप लोग बहुत यंग जनरेशन है, आपको नहीं लगता होगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत एवरेज आदमी हूँ। मेरी माँ को लगता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बचपन में सिर्फ एक चीज़ अच्छी करता था, और वो मैं करता था, जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता था। तो मेरी माँ को लगता था कि मैं बड़ा होकर मोची बनूंगा, क्योंकि इसको मुझे और कुछ नहीं आता। मुझे लगता था मैं बहुत एवरेज हूँ, मैं बहुत एवरेज हूँ, लेकिन एवरेज व्यक्ति भी अगर मेहनत करता है तो वो अपने आप को ऊपर ले जा सकता है। ये मैं कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का वो है। मैं अगर आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो मेहनत करके पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे में योग्यता इतनी नहीं है, मैं बहुत सारे योग्य लोगों से बहुत नीचे हूँ। तो मेहनत एक सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे कभी कतराइए मत, कभी पीछे मत भागिए, चाहे कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your encouraging words. And once again, I would like to tell you all to please a huge round of applause for sir. This is my second session when I'm attending sir's second session, and whenever I listen to him, I learn something new. So I hope that we all have learned something new as well. And thank you so much, sir, and I hope that you come always. So with that, I would like to call Dr. Parul Mehra, Head DME Media School. Our guest of honor, Mr. Ashok Srivastav, sir. You already met him, you have seen him. Such a vibrant persona he has. He is an excellent, very impressive orator and very courageous journalist and an anchor. Sir, despite being a top-notch journalist and an anchor of
media news industry. Sir, the best part about sir is he's a very humble human being. He has never said no to DME. He has always accepted our invitation, and he has always come to deliver and interact with our students. My dear students, I feel truly ecstatic to extend my thanks to Ashok ji that he has come one more time and being here with all of us. Sir, we are highly privileged and honored to have you with us. दो टुक वाले अशोक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी. My dear students, consider yourself extremely fortunate because you have not just got an opportunity to see him in person, but to interact with him to this extent that sir has very patiently took each and every question and given you an extremely satisfactory answer. So, sir, I'm so thankful to you that you always being very kind to us. I just wanted to tell you, my dear students, these days there are very rare media professionals who come with a mission, vision, and sir is a master of a dauntless courage. आपने इतने सारे examples सुने किताबों के तौर पे जो सर ने लिखी और सर ने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी. Believe me, it is not everyone's cup of tea. Sir's way of journalism has been extremely commendable, extremely courageous, and believe me, he is out of the box of the different media professionals that you see who are at the top-notch, level at the industry. Sir's USP is, despite being such a big personality of Indian media industry, he's always been very humble to all you children like this. And this is a big opportunity for the budding journalist to interact and clarify all your doubts from, I always say to Vishal ji, sir to न्यूज़ इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन है. तो मैं तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे सर इज बिकॉज आई कीप ऑन मीटिंग डिफरेंट मीडिया पर्सन्स बट दे आर वेरी एरोगेंट, आई मस्ट से. बट सर इज एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन एंड आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू यू सर. यू आर हियर. Thank you once again. Thank you, ma'am, for your words. And now, as this orientation session comes to an end, I would like to call Pavni Khanna, student BJMC, to deliver vote of thanks. On behalf of Delhi Metropolitan Education Media School, it's my privilege to extend a heartfelt vote of thanks. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed guest, Mr. Ashok Srivastava, senior journalist and prime time anchor of DD News, for taking out time from his busy schedule and sharing his valuable insights with us. Your words have truly enlightened us about the journey of the media industry and the immense transition it has undergone in the past 3 decades. From print to digital, from radio waves to instant news updates, your traditional journalism to media storytelling, the transformation has been phenomenal. And your perspective and your presence has helped us connect with past, present, and future of media. Clearing our doubts, enlightened our path for the field of media. You truly motivated and guided us. Those real-life experiences were an eye-opener for us. Your teaching and life lessons will always stay with us. I also extend my sincere thanks to our respected head of department, Ms. Parul Mehra, whose constant guidance and encouragement and support make events like these possible. A special thanks to all the faculty members, organizers, and my fellow students for their enthusiasm and efforts in making today's session meaningful. Finally, to our audience, thank you for being such an engaging part of this event. As we move forward, let us carry the learning of today and continue exploring how media will help evolving in the years to come. With that, I once again thank Mr. Srivastava and everyone present here. Thank you so much, everyone.